से टीम ने पता नहीं क्यों Rather नई चीज live. अपडेट कर दी है। Karmal? Okay. Assalamu alaikum, all of the viewers that are actually watching us. This is the planning session that we started during the lockdown, but then we realized its efficacy and now we have continued. This session is especially going to be basically focused on education and at startups in specific. We're going to address that what are the fundamental flaws in design of traditional education and how tech startups and where they can come in and do what they want to do with it. So in our panelists today, we have Dr. Aisha Razak. Dr. Aisha is an educationist, consultant, and she occasionally as a columnist also in the national newspapers. Thank you, ma'am, for joining us. Thank you very much. We have Ma'am Sharmeen Zadi. Ma'am Sharmeen Zadi is basically MPhil in education, leadership, and management. But ma'am has worked with schools, with colleges, with universities, with kindergarten students, university students, and so on and so forth. She has also been integral part of a campaign that is Door of Awareness, that is for education for basically all. Thank you, ma'am, for joining us and giving us a good time. Thank you. And lastly, we have our very own alumni, one of the founders of the startups that are very successful in Pakistan, Amar from Nearpeer. Thank you, Amar, for giving us time. On your birthday, it's Amar's birthday. Happy birthday, Amar, from our side. Thank you. Thank you so much. Okay. All the people who are actually currently listening to us right now, guys, if you have any questions or any comments about the session, you will be seeing them a comment section. You can ask the questions here or give your comments here. And if we have time and if we see fit, we'll answer the questions within the session. If not, we'll ask our esteemed panelists to ask them later on. So अगर आप कोई भी कर रहे हैं एडटेक पे काम और आपको एडटेक के बारे में कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो ये हमारे एक्सपर्ट्स इधर मौजूद हैं. आप काइंडली उनसे बात करके तो क्वेश्चंस पूछ लें, हम इंशाल्लाह उनसे आंसर्स लेके आपको जवाब दे देंगे. So without further ado, we'll start with general questions as a whole. So the reason for getting this session as a whole is that we have so many startups that our applications come in for our incubator and they want to work in education. So अच्छा, इसमें कोई काफी लोगों को लगता है कि हमारे एजुकेशन स्पेस में काफी गैप है जहाँ पे काम हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. So, but अभी भी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी और एडटेक की जो टर्म एज अ होल वो समझ नहीं आई. इट्स अ वेरी कैशी टर्म, काफी लोग यूज करते हैं. So what do you actually think EdTech is? Starting with you, Ma'am Sharmeen, what do you think EdTech is? Okay, education technology, very interesting question. And I thought you would actually ask Amar to explain exactly what education technology is. But for me, coming from a background where I have to work with underprivileged as well as highly privileged children, I think it's a very different model for both. Technology can be integrated into anything. आप जब एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं या किसी भी चीज के साथ करते हैं तो पहले वो जो दूसरा काउंटर पार्ट है यहाँ पे एजुकेशन, उसको अपने एक लेवल पे होना चाहिए, फिर ही आप टेक्नोलॉजी उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं. दिस इज व्हाट आई थिंक. मुझे लगता है जैसे आपने अगर किसी को बिरयानी बनाने की तरकीब बतानी हो तो उनको पहले चावल और गोश्त तो उनके पास होना चाहिए ना. So EdTech is useful for people who have all the necessary gadgets as well as tools, and they should know exactly what education is. Okay, got your point. Dr. Aisha, would you like to tell us about what do you think in your perspective what EdTech is and how it works? Sure, Samba, thank you very much. मेरे ख्याल में इतनी इंटरेस्टिंग एनालॉजी जो बिरयानी वाली दी है शर्मीन ने, उसको बीट करना तो बड़ा मुश्किल है. And I think Amar is a very good person to talk about, you know, what in the practical sense in Pakistani ecosystem this term means or has evolved over time to mean different things. लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो बिल्कुल बेसिक से अगर हम शुरू करें, क्योंकि आपके शायद बहुत सारे देखने वाले ऐसे होंगे जो शायद बहुत ज़्यादा नहीं होंगे EdTech scene के साथ. Again, like Sharmeen said, it's a portmanteau coming together of, you know, two words, education and technology. मेरा वैसे अपना ये ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता education technology और EdTech doesn't mean one thing. और
इसको शायद समझने के लिए आपको पहले ये सोचना ज़रूरी है कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो वो कितना वाइड स्पेक्ट्रम है जिसकी हम बात करते हैं, बिकॉज एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट स्कूल एजुकेशन, K-12 एजुकेशन के अंदर उससे ऊपर जो हायर लेवल्स हैं वो भी आते हैं, FSC आती है, उसके बाद कॉलेज आता है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट आता है, उसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग आती है, उसके अलावा टीचर ट्रेनिंग आती है, उसके अलावा प्राइवेट एजुकेशन दैट हैपेंस आउटसाइड ऑफ ये फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम, जैसा कि हमारे ट्यूशन सेंटर्स हैं, वो आते हैं, एंड आई एम श्योर आई मस्ट बी मिसिंग सम अदर एस्पेक्ट्स। तो वो शायद मेरे ख्याल में पहले ख्याल जहन में रखना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू एंटर और एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर लैंडस्केप। और फिर हर एक के अंदर एजुकेशन का कितना एलिमेंट है, वो जो एजुकेशन थ्योरी या टीचिंग एंड लर्निंग और गवर्नेंस और एक्सेस, वो क्या रोल है, और फिर टेक्नोलॉजी, हाउ डज दैट फिट इनटू all of that. So I'll just stop here and let the conversation go on. Okay. And coming for a person, Amar, what actually is कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं that people see from a different angle. You're one of the people who is actually performing in EdTech. So how do you define EdTech, and what do you think EdTech is basically? Well, I hope this does not come as a disappointment, but I do agree with Aisha and Sharmeen on the fact that EdTech जो है definitely those separated, but education is very important. Both of them actually stress the importance of education, and that is something I would like to say as well. A lot of new founders who form EdTech companies, they tend to give a lot of attention to tech. Now, what I believe is that in EdTech, the education is, I think, 80% of the part, and tech is only the 20% of the part. Now, let me explain how. Um, Again, we biryani wali example that Sharmeen gave, I think that was actually good. You actually need the right ingredients before you. So, for me, technology is just a way through which you disseminate education. So you definitely need to work a lot on the education. Now, what is education? That is a very difficult question. I think brilliant minds across the world are right now trying to find a good answer to that. What is good education? What is better education? What is optimized education? Education for societies, education for nation, education to build better humans. So this is a completely different discussion. But for me, I think education staying on the ground right now. I think education is something जो कि आपकी government इस time पे define कर रही है. Education है, ये K-12 के syllabus है, बच्चों ने इतने marks लेने हैं, ये entry test है, entry test के बाद उन्होंने एक अच्छे college के अंदर जाना है. So staying on the ground, we just have to follow that particular definition of education. उसको उठाकर हम technology के ऊपर डालते हैं और उसे हम disseminate करते हैं. अब me as a founder or as a co-founder, as a CEO of the company, मेरे लिए टेक्नोलॉजी, मैंने बोला था टेक्नोलॉजी मेरे लिए सिर्फ 20% पार्ट है. व्हाई? अब as an edtech co-founder, I think my most of the time is dedicated towards understanding education and understanding the revolving subjects around it as well. For example, psychology. So I think I'm a student of cognitive psychology, clinical psychology, education psychology, societal psychology, for example. So I need to learn all these things. I need to understand all these things to come up with the content and to learn the behaviors and to see what students actually need. So my 80% of the time is actually dedicated towards that. And maybe that is one of the reasons why we keep on seeing the growth on our platform, because people actually love our content. Now, what founders usually do is, and I would actually like to use this opportunity to convey that I actually feel very hurt when I see co-founders investing their, for example, if they are in plan 9 for 6 months, I actually see them spending 5 months on building just a technology and maybe 1 month on the content. When we go to them, we ask them, अच्छा इसमें content क्या है, क्या चीज़ डली हुई है? They are like, नहीं बस platform तैयार है, अभी इसके अंदर हमने content डालना है, content किस psychology से डालना है, किस thinking के साथ डालना है, कोई वो thinking define वहाँ पर नहीं हुई होती. So I think EdTech के अंदर people actually confuse कि technology और ed जो है दोनों 50-50 हैं, या शायद technology का ज़्यादा रोल है, लेकिन I think नहीं. Education का ही बहुत बड़ा रोल है. Technology is just a way, just a small thing using which you actually disseminate the content, nothing more than that. If I may just add to Yeah, this, sure, please. जैसे एक ज़माने में जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती थी, अब वो जब बड़े होकर नौकरी ढूंढते हैं, तो the ones who can speak in English have a much higher chance of getting a degree or getting a
job and getting paid a lot more than those who cannot speak in English. Similarly, now students who have this advantage of online learning, e-learning, they will have that same edge. जिस तरह आज हम अंग्रेजी बोलने वालों के पास एक ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, जिन बच्चों को आज आप टेक्निकल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, वो बहुत आगे निकल जाएंगे अपने बाकी उन बच्चों के साथ जिन बेचारों को आज कुछ नहीं मिल रहा. तो इम्पोर्टेंट बहुत है टेक्नोलॉजी, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन जैसे अमार ने कहा, शुरू एजुकेशन से करना पड़ेगा. पहले आपकी एजुकेशन प्लेटफॉर्म परफेक्ट हो, फिर उसमें वो आपको बताएं कि अब हमें टेक्नोलॉजी से क्या क्या चाहिए. Okay. That makes absolute sense. Coming down to the second question, basically. So now this is going to be a tough question as a whole. Ma'am, Dr. Aisha, I would like you to answer it first. काफी effort हुई है over the years, organized effort in Pakistan on basically education as a whole. Pakistan started its own channel, PTV2, for other people's openness. Pakistan did AIUU courses, we did virtual university, and then coming back forward, now we are also running tele education. काफी startups आए, USAID ने कोशिश की, DFID के बहुत अच्छे projects थे, local कोशिशें थी बहुत अच्छी जिसमें door of awareness भी थी, so on and so forth. Why do you think none of them were able to actually go up to the goal, or not to put words in your mouth, do you think any of them, these efforts have led to a decent contribution towards solving the education problem in Pakistan? Yes या no में जवाब दूं या complicated? नहीं अब पहले आप बताइए है या नहीं है, उसके बाद हम पूछेंगे अगर नहीं है तो क्यों है, और है तो कैसे है. I know, and it's such a complex question to answer because वही बात है कि सब जैसे मैंने पहले कहा था ना कि एक तो मेरे ख्याल में अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने डीलिमिट करनी है कॉन्वर्सेशन एंड वी आर गोइंग टू स्पीक ऑफ हम सिर्फ K-12 एजुकेशन की या फॉर्मल सेटिंग्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस और क्या चीज़ें आई हैं, व्हाट हैज़ वर्कड आउट, व्हाट हैजंट वर्कड आउट, आई थिंक दैट विल लुक डिफरेंट. आई थिंक अगर हम उससे बाहर निकल कर बात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर की बात करें या इनफॉर्मल सेटिंग्स की बात करें, तो वो एक डिफरेंट प्रॉब्लम है और उसका एक डिफरेंट उसके लिए सोल्यूशन चाहिए. सो लेट मी ब्रीफली टच ऑन, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है. अच्छा, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी इससे भी आ जाती है मेरे ख्याल में, क्योंकि अब एडटेक को इतने, आपने खुद अभी जो ये अपनी सवाल मुझसे पूछा है, उसी के अंदर इतनी वैरायटी ऑफ थिंग्स डाल दी हैं एडटेक के अंदर कि इसके अंदर टेली स्कूल भी आ गया, इसके अंदर ऑनलाइन एजुकेशन भी आ गई, इसके अंदर टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्स भी आपकी आ गई, एटसेट्रा एटसेट्रा. और वो हर एक का डिफरेंट एक मकसद होता है, हर एक का डिफरेंट प्रॉब्लम सेट होता है जिसको आप एड्रेस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या एक पर्टिकुलर मीडियम के साथ. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दैट really needs to be broken down. I think वो आपकी बात ठीक है कि एडटेक के अंदर पिछले कुछ सालों में, खास तौर पे 4-5 साल, इनफैक्ट प्लान 9 उसके अंदर मेरे ख्याल में एक डिफिड फंडेड प्रोजेक्ट था जो कि पिछले साल 2 साल पहले खत्म हुआ. इनफैक्ट आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, और ऑल्दो के प्लान 9 और दूसरे इंक्यूबेटर्स के साथ मेरा डायरेक्टली काम नहीं था, बट आई वर्क मोस्टली ऑन नॉलेज जनरेशन और रिसर्च बेस्ड वर्क, जिसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ आपका पता चलता रहता था. तो वो एडटेक वाला फिनोमिना जो है ना, वो जरा थोड़ा सा मेरा अपना ये ख्याल है कि थोड़ा रिसेंटली जरा ज्यादा मोमेंटम इसने गेन किया है पिछले 4-5 सालों के अंदर. आई मे बी रॉन्ग एंड मे बी अमार कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. मेरे ख्याल में एकदम से वो स्प्राउट होना शुरू हुए हैं, एकदम से हमें इंटरेस्ट नजर आना शुरू हुआ है. Whether it's working or not, it's still to be seen. The jury is still out, I guess. मेरे ख्याल में COVID provides you an opportunity to basically experiment and see, what works, what doesn't work. कहाँ पर अभी भी हमारे पास weaknesses हैं जिनको हमें address करने की ज़रूरत है. मेरा अपना ख्याल, and going back to the conversation जो अमार पहले कर रहे थे, मेरे ख्याल में अभी भी लोगों को बहुत ज़्यादा confusion है कि edtech है क्या, इसके अंदर एजुकेशन का कितना रोल होना चाहिए और कितना रोल टेक्नोलॉजी का होना चाहिए. आई थिंक वो टेंशन अभी तक एग्जिस्ट कर रही है. बहुत दफा जब मैं खुद एडटेक स्टार्टअप्स के साथ कभी कम्युनिकेट करूं, तो मुझे लगता है कि वो टेक्नोलॉजी को पैनेसिया समझते हैं और वो समझते हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई तो सब कुछ हो गया. टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स इज, कंसिडरिंग पाकिस्तान का प्रॉब्लम का स्केल क्या है, मतलब आप सोचें कि हमारे पास करोड़ों बच्चे हैं,
हमारे पास लाखों टीचर्स हैं, हमारे पास लाखों इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप सिर्फ फॉर्मल स्कूलिंग और वो कॉलेजेस की भी बात करें। तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक बड़ा इफेक्टिव सोल्यूशन वाकई बन सकता है टू रीच people at scale, children at scale और teachers at scale. हम दूर दराज जगह जहाँ पर शायद अच्छी ह्यूमन रिसोर्स का पहुँचना मुश्किल है, वहाँ पर पहुँच सकते हैं। हम एक सर्टेन डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम एक स्टैंडर्डाइज कंटेंट थ्रू टेक्नोलॉजी वो कर सकें। तो वो इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, बहुत सारे मसलों के लिए, हर मसले के लिए नहीं, कुछ के अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन विद टेक्नोलॉजी इज मोर इम्पॉर्टेंट। आई थिंक वो मॉडरेशन वाला पहलू इज मोर इम्पॉर्टेंट। कुछ के अंदर यू कैन लीव इट टू द लर्नर, उसकी सेल्फ डायरेक्टेडनेस पे या उसकी एबिलिटी टू लर्न ऑन हिज और हर ओन, उसके ऊपर ज्यादा। और वो मोस्टली यू सी दैट एट द ओल्डर चिल्ड्रन, इट्स इजियर विद देम that way, right? So I don't think I've answered your question. What I've tried to, I guess, communicate through my answer is that it's a much more complex question. I think there are certain areas where you have seen successes, perhaps not at a scale that you would like to see them at. There are other areas that have not been explored as yet, या वहाँ पे weaknesses या वहाँ पे hurdles थोड़ी सी ज़्यादा है। और ये it's a nascent, अभी भी बेशक आप कहें कि 10 साल से शुरू हुआ ये 15 साल, that's nascent. तो ये going to develop over time. Okay, got your point. Ma'am Shameen, so there was also another question in our basically FAQs, and I wanted to personally ask you this. बहुत सारे technology is going, there's no doubt technology is going to empower students that they are responsible for their own learning and their self-learning. But I've talked to a lot of HODs recently, and with this pandemic that has hit us all very, very hardly, but it has hurt the education system most as people are not going to schools. So many different HODs at the end of departments, even universities, they were telling me that the problem is far greater than what we actually expected. And the problem is that if we give students online quizzes, they try to cheat. If we give them online exams, they are not there. If we give them online classes, they just put up their pictures, or they turn off their cameras, and they also turn off their microphones, and they sleep, and they're not paying attention, and they're not asking anything, and so on and so forth. So do you think that empowering students in technology is actually empowering any individual with its own learning? It's highly important. But what are the traits you think that we should first inculcate in our students and then go towards technology so they can have their own self-learning empowerment? Okay, so you basically need a wonderful student. You need a perfect student who can use all the tools that are given to the student. EdTech में अक्सर ऐसा भी होता है कि जब आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे होते हैं, आप टीचर के point of view से create कर रहे होते हैं, you're trying to give more comfort and ease to the teachers instead of to the students. अगर आप एक TED Talk सुने, Sugata Mitra, I'm sure Aisha Rahman ने तो सुनी होगी, I want all my young learners to listen to that TED Talk about the school in the cloud, where Sugata Mitra says he asked his learners, what is it that you best like about this technology that you're learning from a computer machine, and you don't have anybody over there, just the teacher is talking to you through the machine. The students said that we can turn them off. This is hilarious, I think, that the children always would want the teacher to go away because they want control. Okay. And then again, they have to be interested in what you're trying to teach them. वो आपने curriculum पढ़ा होगा, saber-tooth curriculum. पुराने ज़माने की बातें, theories आप वो सिखा रहे हैं जो बच्चों को fail हो गई हैं. You teach them what is their need for the day, and then you will see that they are interested. Passive learning होती है, एक participatory learning होती है. आप बच्चों को अगर lecture देंगे, क्या 5% हो जाएगी उनकी learning? आप उनको even अगर demonstrative method देंगे, वो भी 30% से ज़्यादा नहीं learning होगी. लेकिन आप बच्चों को classroom projects दें, integrated हो, different subjects come together, एक साथ different subjects should come together and create a model where they're using the English language to work on a computer project to achieve their goals. Even if it is on EdTech, you have to create a way where the children can come together using technology. जब तक हमारी collaboration नहीं होगी, learning नहीं होगी, isolation में नहीं कुछ हो सकता. Got it.
So nothing can work in silos. What जो ऑडियंस में सुन रहे हैं, मैम का टोटल जो बात थी उसका मकसद ये है कि साइलोज में जब तक हम काम करेंगे तो इसी किस्म के रिस्पॉन्सेस होंगे। अगर हम सब चीज़ों को यूनिफाई करके कोई ग्रांड बेसिकली एक जेस्चर एक इकोसिस्टम डेवलप कर ले नॉलेज का, तो उससे में अगर स्टूडेंट्स पढ़ें तो उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होल्ड होगा, एंड विद द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इट्स गोना स्प्राउट आउट देयर इंटेंशन टू बेसिकली लर्न। वही बात सर मैं जो आयशा पहले ही कह चुकी है, पहले आपको अपना करिकुलम देखना पड़ेगा, रीडिफाइन योर करिकुलम। करिकुलम है, मैं ये नहीं कह रही करिकुलम हमारा अच्छा है, स्किल्स की बात भी करते हैं, मॉरल वैल्यूज की भी बात करते हैं, करिकुलम में करते हैं, असल में कितनी करते हैं पता नहीं। आपके बच्चों को अब मैं क्या like I'm going to digress from the topic if I start talking about the issues that we have as civilians, as citizens of Pakistan. क्योंकि moral values नहीं ना develop हो रही, parents, teachers, we all have to be collaborators in bringing up our children equally. ये नहीं करना कि स्कूल पेरेंट्स को दोष दे और पेरेंट्स कहें कि जी स्कूल की गलती है, मिलके करना है। बच्चे हमारे परफेक्ट लर्नर्स बन जाएंगे, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए। Absolutely. Then we will So, not have an issue. और बच्चों को वो चीज दे जो उनकी नीड है। ठीक है। सो मैम को बेसिकली कॉन्सेप्ट ये मैम जो कहना चाह रही है कि ब्लेम गेम खत्म होनी चाहिए और बच्चों को वही चीजें देनी चाहिए जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ताकि उनका इंटरेस्ट और डेवलप हो सके। अमार, कमिंग टू यू फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली, यस मैम आल्सो डॉक्टर आयशा आल्सो टॉक्ड अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन। सो देयर इज आई नो Nearpeer works on standardized models are basically of education, but have you ever faced this kind of problem कि अगर आपका जो कंटेंट है, अगर वो कोई उर्दू मीडियम का बंदा पढ़ना चाहे या इंग्लिश मीडियम का पढ़ना चाहे या कैम्ब्रिज सिस्टम से हमारे लोग अलग आते हैं और ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन से अलग आते हैं, सो हैव यू गेन दिस स्टैंडर्डाइजेशन एन इशू फॉर यू? हैव यू गेन इश्यूज कि एक बंदा कहता है जी मैं उर्दू मीडियम से मुझे बात समझ नहीं आ रही, आप अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी चेंज करें और इस तरह? Short answer, no, not at all. Because all of our courses are bilingual. और ज़्यादा उसके अंदर उर्दू या इंग्लिश यूज़ होती है, और पाकिस्तान के चारों सूबे फॉर्चुनेटली जो है उर्दू समझते हैं, तो बच्चों को कभी कोई इस तरह का इशू नहीं होता। आई डोंट थिंक स्टैंडर्डाइजेशन का तो बहुत ज़्यादा इशू है। ज़्यादा से ज़्यादा शायद ये इशू होता है कि आपके कोर्स के ऊपर ये पंजाब का नाम लिखा हुआ है तो क्या सिंध के लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। तो हम उनको बताते हैं कि डेफिनेटली एप्लीकेबल होगा क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर हमें एक्चुअली अपने कोर्सेज को उस तरह से डिज़ाइन करना पड़ता है कि नियर पीयर की जो एक बात है वो ये है कि आवर कोर वैल्यूज दैट वी आर हाईली स्पेसिफिक टू द मार्केट दैट वी आर केटरिंग टू। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है और एसीसी का कोर्स है, दो डिफरेंट कोर्सेज के अंदर टैक्सेशन का कोर्स है, तो दोनों एक कोर्स जो है वो दोनों को केटर कर सकता है, बट वी हैव टू सेपरेट कोर्सेज फॉर ईच मार्केट बिकॉज व्हेन द स्टूडेंट टेक्स आवर कोर्स he or she should have the confidence that this course has been designed for me by someone who knows my market, who has been teaching in my market. So that being specific is very important. So right now हमने specific जानने की कोशिश की और हमने पंजाब से शुरू किया, फिर बाकी सूबों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो नाउ वी आर थिंकिंग कि हम बाकी सूबों के लिए भी अलग अलग कंटेंट बनाएं, लेकिन अब अगेन मुझे मैं उनके सिलेबस को केटर करने के लिए उनके सूबों की चीज़ें बनाऊंगा, ना कि लैंग्वेज या इस तरह की कोई और बैरियर के लिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन का ऐसा हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन यह है मिडिल ईस्ट में जाना होगा तो डेफिनेटली उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट होगा, वो इट विल बी इन इंग्लिश आई थिंक, उसमें उर्दू का कोई ज़्यादा एलिमेंट नहीं होगा। अभी वी हैव क्रिएटेड ACCA कोर्सेज फॉर अफगानिस्तान, उसके अंदर वी हैव ट्राइड के इंग्लिश ही रखी जाए, इवन दो वी हैड ऑप्शंस ऑफ हैविंग अफगानी टीचर्स, बट वी वर लाइक नहीं, इंग्लिश ही ठीक है ताकि वो फिर मलेशिया मॉरिशस यहाँ पर भी थोड़ा सा एप्लीकेबल हो वो कोर्सेज, तो हम उन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, एनीवेज एक क्वेश्चन इसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा जो कि पहले आयशा से आपने पूछा था अबाउट द डिफिट एंड एवरीथिंग, एंड आई थिंक मैं कह रहा हूँ मल्टीपल चीज़ों वहाँ पर कवर करूँगा। आई थिंक टू मी स्टार्टअप्स और जो इंक्यूबेटर्स की जो या डिफिट इन सब की जो गेम होती है, इट्स अ नंबर गेम। लाइक सेल्स के अंदर आप देखते हैं सेल्स फनल एक प्रॉपर बना होता है, आप टॉप से 100 लोग think we have lost the connection. डालते हैं और आफ्टर से आपकी 5 6 7 दिन, आई एम सॉरी, एम आई ऑडिबल ना? अच्छा, तो सो दिस इज अ नंबर गेम। तो अच्छा, अब होता ये है कि इसी तरह जो है वो स्टार्टअप्स भी आपके इंक्यूबेटर्स चलते हैं, इंक्यूबेटर्स के अंदर आप 20 स्टार्टअप्स अगर डालते हैं एक सेशन के अंदर, तो हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आखिर में 2 या 3 जो है वो अच्छे चल रहे हों, ठीक है। अब इसके अंदर आप ये नहीं कहते कि इंक्यूबेटर की गलती है या डिफिट की गलती है, फंडिंग की गलती है, प्रोजेक्ट स्कोप खराब था या जो भी था। आई थिंक इट्स अ नंबर गेम। तो डिफिट जब पाकिस्तान के अंदर आया, उन्होंने मतलब प्लान 9 के अंदर मुझे अभी भी याद है कि हमारी इंडक्शन नहीं हो रही थी, थैंक्स टू डिफिट के
उन्होंने फिर एडटेक के लिए एक स्पेशल स्लॉट बनाई थी और फिर हमारी उसके अंदर इंक्यूबेशन हुई थी. वी वर वेरी हैप्पी अबाउट इट. NIC के अंदर भी हुआ था. मूविंग फॉरवर्ड नाउ वी सी एटलीस्ट 2-3 स्टार्टअप्स को मैं अच्छा जानता हूँ जो डिफिट से ही निकले हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है. एडकासा इज वन ऑफ देम फॉर एग्जांपल. लेकिन इस वाले क्वेश्चन को एड्रेस करने का मेरा जो खास मकसद ये था कि नॉर्मली होता क्या है कि जो डोनर्स फॉर एग्जांपल डिफिट एंड आयशा माइट हैव वर्कड ऑन इट, तो वो शायद एग्री करेंगे इस चीज़ से कि डोनर्स का मकसद ये होता है कि आप किसी तरह से अपने प्लेटफॉर्म को बनाएं दैट केटर्स टू बॉटम ऑफ द पिरामिड. डिफिट का ये बहुत बड़ा मकसद था जब वो पाकिस्तान के अंदर था. डिफिट के साथ हमारी बहुत ज्यादा हर वक्त ये जिद चलती रहती थी कि नहीं, वी डू नॉट वांट टू केटर टू द बॉटम ऑफ द पिरामिड राइट नाउ व्हाटसोएवर. कम ऑन, दिस इज एन एंटरप्राइज, वी नीड टू मेक मनी टू सस्टेन आवरसेल्फ. ये 6 महीने जब तक हम इंक्यूबेटेड हैं तब तक का ये प्रोजेक्ट नहीं है. दिस इज गोइंग टू बी आवर ब्रेड एंड बटर, दिस इज गोइंग टू बी आवर लाइफ. हम लोगों ने डिग्रियां लेने के बाद कंपनी इसलिए स्टार्ट नहीं की थी कि हम लोग जो है बॉटम ऑफ द पिरामिड को केटर करें, पैसे चार्ज ना करें और हम लोग फीस बिल्ला काम करें. आप लोगों की डोनेशन $1,00,000 $2,00,000 मिल जाएगी, वो 6-7 महीने 8 महीने में मैक्सिमम वो खत्म हो जाएगी. उसके बाद इफ वी डू नॉट हैव द सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल तो क्या होगा. फ्यू ऑफ द स्टार्टअप्स एक्चुअली गॉट इनटू दिस डायलेमा कि उन्होंने फंडिंग वगैरह उठा ली थी. दे वर्कड ऑन देयर ज्यूरिसडिक्शन कि अच्छा यार ये करना है ये करना है ये करना है. जब फंडिंग खत्म हो गई, डिफिट ने सारा रैप अप कर लिया सारा कुछ, तो दे फाउंड देमसेल्फ इन अ डेजर्ट आई गेस. बट नियर पीयर ऑन द अदर हैंड वी वर लाइक नहीं यार, we need to start from the cities, we need to start from the age group 20 to 30. CSS बनाएंगे, CA बनाएंगे, ACCA बनाएंगे, आएंगे पीछे भी आएंगे, मैट्रिक FCP भी आएंगे, लेकिन पहले यहाँ पर हम स्ट्रांग हो जाए. तो आई थिंक इट इज वर्किंग वेरी वेल फॉर अस. वहां पर हमने स्ट्रेंथ अपनी गेन कर लिया है, वहां पर हमने लाइक लिटरली क्लोज टू मोनोपोलीज बना लिया. नाउ वी आर रोलिंग बैक टू MD CAT program, ECAT program, SAT, FSC, metric. So I think startups really need to focus on making revenues in the start, no matter what. मुल्क की खिदमत तभी होगी जब आप अपनी खुद की खिदमत करेंगे. That's it. Acha, I actually want to interject here, Sarmad, and I would like to Please, ma'am. respond to a few things that Amar just highlighted. Absolutely. So, without going into names etc, because I think फिर वो एक प्लेयर की बात होने शुरू हो जाती है. I think वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना कि ये सोशल एंटरप्राइज है या ये एक बिजनेस है, और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या मतलब इसका आता है, वो टेंशन जो है दैट एग्जिस्ट्स. और बात ठीक है कि जब आप फर्ज करें डोनर मनी की या पब्लिक मनी की बात करते हैं तो आपको पता है कि वो टैक्स पेयर के पैसे हैं. वो ये मेरे ख्याल में किसी को भी कोई भी नहीं, हम में से एज टैक्स पेयर्स भी आप सोचें, हम में से ये कोई पसंद नहीं करेगा कि हमारी कंट्रीब्यूशन जो है वो किसी एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए या किसी का प्राइवेट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए यूज हो. ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही कि बिजनेसेस को अपना इंटरेस्ट सामने नहीं रखना चाहिए और उनको अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए काम ऑफ कोर्स करना चाहिए. बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट पब्लिक मनी, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट पब्लिक मनी मींस कि ये पैसा वो है विच इज हार्ड फॉट, जिसके और भी बहुत सारे कंटेंडर्स हैं, जिसका एजुकेशन सिर्फ कंटेंडर नहीं है, जिसका कंटेंडर हेल्थ भी है और रूल ऑफ लॉ भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और ये भी है और वो भी है. और ये कोई नहीं देखना चाहता कि इतने सारे पैसों से एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ठीक है, वो एक अगेन टेंशन भी एग्जिस्ट करती है कि जी अगर कोई स्टार्टअप है तो उसके लिए फेलियर का अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स फेल बिफोर समबडी मेक्स इट. तो वो भी एक होना चाहिए बीच में. लेकिन बहरहाल इन द रियल वर्ल्ड थिंग्स डू नॉट हैपन इन द मोस्ट आइडियल वे. डिफरेंट किस्म की लिमिटेशंस होती हैं और किसी को लगता है कि वो रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं है, लेकिन वो रैशनल होती है फॉर समबडी एल्स बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स दैट दे आर सर्विंग टू. सो मेरे ख्याल में वो पब्लिक फंड्स को आपको बहुत देखभाल के, खासतौर पे व्हेन यू आर आंसरेबल टू टैक्स पेयर्स एंड द पार्लियामेंटेरियंस एंड द रेस्ट ऑफ इट, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. देयर इज नो अदर वे अराउंड इट. दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में अमार का एक्सपीरियंस इज अ वेरी इट्स एन आउटलायर एक्सपीरियंस व्हेन यू टॉक अबाउट एडटेक इन पाकिस्तान, बिकॉज आई थिंक अमार एक बिल्कुल नीश मार्केट को केटर करते हैं मेरे ख्याल में, इफ आई एम करेक्ट, जो नियर पियर का मुझे अंडरस्टैंडिंग है, जो कि टेस्ट प्रेपरेशन है, जो एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाके तो वो उसके अंदर आप एक मार्केट ढूंढ सकते हैं, पेइंग मार्केट. जब हम ज्यादातर एडटेक की या कोविड के अंदर एडटेक की बात करते हैं ना, तो हम स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे होते हैं, और ये वो हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्कूल एजुकेशन के अंदर अभी भी आपके 57% 60% बच्चे पब्लिक स्कूलों में जाते हैं. आपके पास करोड़ों में बच्चे हैं जो इस वक्त स्कूल में जाते हैं, मेरे ख्याल में 5 करोड़ समथिंग आपके बच्चे हैं, जिसमें से 57-60% गो टू पब्लिक स्कूल्स.
जो प्राइवेट में भी जा रहे हैं वो कोई एलीट प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, उनमें से जो मेजॉरिटी है आपकी वो लो इनकम या मीडियम इनकम में जा रही है। तो आप बिल्कुल सस्टेनेबिलिटी का सोचें, लेकिन वही बात है कि देन आई थिंक यहीं पर हमारा शायद वो स्ट्रगल है कि स्केल बहुत बड़ा है, और स्केल हमारा वो उस जगह पे बड़ा है पिरामिड में जहाँ पे जो पेइंग कैपेसिटी नहीं है, पेइंग कैपेसिटी नहीं है। सो आई थिंक वहीं पर तो वो आपकी क्रिएटिविटी एज एन एडटेक मेरे ख्याल में लोग शायद डिमांड कर रहे होते हैं, डोनर या पब्लिक सेक्टर, जो फॉर डिफरेंट रीजंस, नॉट बिकॉज द एडटेक सेक्टर में कोई कमी है या कुछ इस तरह की बात, लेकिन वो अभी तक हैक नहीं हो रही प्रॉब्लम। सो आई जस्ट वांट टू एड्रेस दैट। और एक सिर्फ आई एम सॉरी, आई मे बी टेकिंग मोर टाइम देन आई शुड, बट आई जस्ट सॉ अ question from one of the, I think, people on watching on Facebook. And it was about मुख्तलिफ किस्म के बच्चे, and this goes back to the standardization comment also, which I want to clarify. By standardization, I didn't really mean, जो मेरे ख्याल में शायद मतलब लिया गया, standardization से मेरा मतलब था कि क्योंकि हमारे इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं क्वालिटी के और एक्सेस के, तो स्टैंडर्डाइजेशन इन द सेंस कि एक सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड आप हर एक को प्रोवाइड कर सकें। ये सोचे बगैर कि इसके पास अच्छा टीचर है या बुरा टीचर है, या ये रिसोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, तो एक सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड आप थ्रू टेक्नोलॉजी इनेबल कर सकते हैं एट स्केल। जहाँ तक वो सवाल है कि मुख्तलिफ बच्चों को आप किस तरह से इनेबल कर सकते हैं टू लर्न थ्रू टेक्नोलॉजी, आई थिंक वो बहुत वैलिड क्वेश्चन है। आई थिंक सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड ही उसकी वजह से होती है, और शायद गोइंग बैक टू द अर्लियर रिमार्क्स के छोटे बच्चों के लिए फॉर एग्जांपल आपको ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए। मैं जब ये खबरें सुनती हूँ कि टेली स्कूल आ गया है और ये सोल्यूशन आ गया है और अब कोविड की वजह से कोई मसला नहीं रहेगा कॉन्टिन्यूटी ऑफ एजुकेशन में, तो मुझे ये होता है कि हम में से कितने बच्चे हैं जो इस तरह से, जिनको ट्रेन किया जाता है थ्रू स्कूल्स या इन फैमिलीज, के वो मॉडरेशन के बगैर सीख सकें। Moderation through a teacher or through a parent is very, very important, and we know that there are a number of children जहाँ पर घर के अंदर इस तरह की कोई moderation available नहीं होती। तो वो ठीक है कि बच्चे को कुछ ना कुछ engagement चाहिए in times में, even to stay sane in these times, और थोड़ा वो एक healthy sort of engagement, लेकिन learning क्या हो रही है इन चीजों से या नहीं, that's questionable. Absolutely. Sarmad, if I may. Yeah, please. First of all, I completely agree with Aisha about the public money wala point, and maybe I think I take pride in telling that Near Peer never ever applied for any public grant aaj tak. And the reason was that we do realize that public money hai, iske liye definitely they have the objectives se bottom of the pyramid mein jana hai, and right now because we are not catering to that, and we think that even if we want to cater to that, using public money to cater to that is not the good idea at all. And I think so you might know about Byju's in India. So Byju's in India, I think we hold them very ideal. India ke andar they are working. They have more than 3 million users right now, paying customers right now. It has a valuation of over $8 billion. अब अगर उनकी अगर हम बात करें, तो they started as a commercial enterprise, edtech के अंदर ही they cater to cities. 1 लाख रुपए का उनका साल का कोर्स होता था and everything, and starting from cities, now they have started to roll into the villages जहाँ पर उनके कोर्सेज बहुत सब्सिडाइज्ड हैं, वो गवर्नमेंट को भी देते हैं, वो काफ़ी डोनर एजेंसी के साथ काम करते हैं। बट in the start, they start in 2011, 2012, they started from the test prep program. वहाँ से they made a lot of money, they increased their valuation, they raised the funding, not the public money, but the funding from the investors, and then they went into the bottom of the pyramid as well. And I think we are going to follow the same thing as well. I don't think that public money can be used to build the enterprises. Yes, that is completely right. Dr. Shameen, ma'am, with me. So there was a question I would like to ask you as a whole. Ma'am, आपके ख्याल में बहुत ज़्यादा ये narrative develop हो गया over the period of time that with Elon Musk saying that degrees don't matter anymore, and with top universities of the world and top companies of the world basically asking कि university degrees matter नहीं करती, and so on and so forth. So there is an entire structure and entire thought process developed in Pakistan कि the modern education system. I think if you see that on Netherlands, there was one Western country that even abolished as a whole traditional examining system. So the examination systems as a whole. So बहुत ज़्यादा ये develop हो गया कि degrees won't
aren't relevant anymore, and that's why more people are going towards skill development as a whole. Look, online skills seek रहे हैं for different stuff and etc. What do you think, that is traditional education relevant in Pakistan, and or we have actually the curriculum, as we pointed out, or the curriculum is so outdated that it has not become relevant anymore? Okay, Sarmad, I would maybe say something very funny again here. They say Absolutely, that please. only people who can say that money is not important are the people who have money. People who already have a good education and a very good degree might feel that degrees are not important. Now, for example, talk about a person who has to interview 10 or 15 applicants for a position, and you don't have time these days. How do you select one of those 15 applicants? What are you going to base your initial selection on for the interview stage? I'm not saying that you're going to just look at the degree and hire the person. Degrees do matter. And then we also look at the schooling. If I have to interview for a teacher, I don't look at where she graduated from. I look at her school. I think schools are very important again. What you have learned, आपकी skills आपने क्या gain किए, your moral values, all of these things are important. And of course, जिन लोगों ने degree use नहीं करनी, बहुत सारी medical की students होती हैं, बच्चियां शादियां करके घर बैठ जाती हैं, government के पैसे जाया करती हैं, फिर उनको चाहिए सोच के करें कि इस degree का purpose क्या है. Why do you want a degree? I wanted to do PhD. You know, that was a dream of mine for a very long time. And the reason why I rethought about it was because a lot of my friends did convince me that you need a PhD if you want to go into university education. But if you want to continue as an education manager in the NGO segment or in the school segment, then you don't really need that research degree. तो आप पहले सोचें कि आपको डिग्री करनी क्यों है, उसका मकसद क्या है, आप उसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं. फिर जब आप एक डिग्री पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जाहिर है आपको थोड़ा सा उससे चाहिए भी होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है. So you have to be very careful about what you need the degree for. Skills, हो सकता है ज्यादा काम आ जाए सीखना बाज लोगों के बजाय डिग्री के. बाज बड़ी लेम डिग्रीज हैं जिनका कोई फायदा ही नहीं है. कितने सारे लोग हैं, I will not name, who have a particular specific degree for which there are no jobs now. But then again they say जो आप आजकल मार्केट क्रिएट करें, आपको देखना है 20 years के बाद जॉब सेगमेंट में किसकी जरूरत होगी. Technology in education is very important. Okay, to all of our users that are out there, Finland was the country that initially basically abolished all the examinations, traditional examinations, but then they are actually working on bringing them back in some other way, some other modality as a whole. Acha, I'm sorry, Finland की schooling इतनी जबरदस्त है कि उनको पता होता है degrees don't matter because उनका school system बहुत strong है. They don't need the degree then because they know their children are coming from a very strong background. So all the viewers, what I was trying to impart by the question and what ma'am has answered basically as a whole, वो ये है कि either आपका schooling system इतना positive हो, इतना solid foundations पे बना हुआ हो कि you do not actually need to check the people who are that they were there or not and that they understood or not. It is that you imparted so much knowledge that even partial of that is there, then that is fine. That cannot be directly implied. This analogy cannot be directly applied in Pakistan because we have our issues with the students, with the education system, with the curriculum and everything. So one analogy that is true in somewhere else in the world may not be directly implied to Pakistan. Coming back, Dr. Aisha, there is another question that we've got basically. ये कि we पाकिस्तान में लोग काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं. इन प्रिपरेशंस, इन टेस्ट प्रिपरेशंस, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं लोगों को पढ़ाने के लिए थ्रू एनिमेशन, क्लासरूम कल्चर्स पे एंड डिफरेंट स्टफ. What do you think is the place that is still at the gap and has not been tapped yet? यानी कि अगर कोई बंदा हमारा ये सेशन सुन रहा और वो टेक में काम कर रहा है तो उसे किस साइट पे काम करना चाहिए जहां पर अभी काफी void अवेलेबल हो? I think sir, a very good question वो इस वजह से भी क्योंकि मैं खुद सोच रही थी. I was actually framing the question in a a bit differently than you just have. लेकिन more or less along the same lines के basically इस वक्त जो audience आपको देख रही होगी वो कौन लोग होंगे जो Plan 9 के ऊपर पहले से subscribed हैं और ये शायद वो लोग होंगे जो already आपके या इनकी किसी graduate कर चुके हैं आपकी incubator से या फिर interested हैं tech के अंदर या competitors हैं etc. So I think जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर बात है ना एडटेक की, तो there are two ways of looking about it. एक तो ये कि
हमें टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए एजुकेशन के अंदर? सॉरी, आई एम आल्सो थिंकिंग आउट लाउड व्हेन आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन, बिकॉज ये कोई इसका एक वो जवाब नहीं है परफेक्ट। मैं जब सोचती हूँ ना तो मुझे ये लगता है कि एडटेक को हमारे मुल्क के अंदर नीश ढूंढनी पड़ेगी। शायद ये और कॉन्टेक्स्ट के लिए भी ट्रू हो। कुछ तो बड़ी आराम से, मेरे ख्याल में अमार की जैसी एग्जांपल जो है वो बड़ी क्या कहना चाहिए कि वो बड़ी अच्छी, उन्होंने एक मार्केट देख ली, उन्होंने ये भी देख लिया कि सॉर्ट ऑफ स्टैंड अलोन है इन द सेंस कि इनका कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप है, बीच में कोई सिस्टम नहीं आ रहा, पब्लिक प्राइवेट ये वो प्रोक्योरमेंट के इश्यूज एक्सेट्रा, डायरेक्टली कस्टमर के साथ लिंक है और वो काम हो गया। ये चीजें बड़ी आसान है। जो चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंस में पिछले 4-5 साल एडटेक के साथ या अदरवाइज एजुकेशन डेवलपमेंट के अंदर सीखी है, वो ये है कि वो सॉल्यूशंस काम करेंगे जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है प्री कंडीशंस के ऊपर। सो अगर आप चाहते हैं ना कि टीचर भी चेंज हो जाए और स्कूल भी चेंज हो जाए और प्रिंसिपल भी चेंज हो जाए और ये भी हो जाए वो भी हो जाए, तो वो चीजें काम नहीं करेंगी। आपके शायद सक्सेस फौरी तौर पे अगर इंस्टेंटली आप चाहते हैं तो शायद उन चीजों में जरा ज्यादा है जो जाके फॉरेन सिस्टम में फिट इन हो जाती हैं। हमारे प्रॉब्लम्स भी जो है, जब आप फिनलैंड की एग्जाम्पल दे रहे थे मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी क्योंकि मैं जब सोचती हूँ ना ये इस तरह के मुल्कों का, तो मुझे लगता है कि हमारी तो इतनी बेसिक अभी प्रॉब्लम्स हैं और हमारी पॉपुलेशन माशाल्लाह जिसको हम कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे, इतनी सारी वो प्रॉब्लम्स हैं कि आप कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ खत्म करेंगे। तो हाँ, तो आई एम सॉरी, आई थिंक आई एम रैम्बलिंग अ लिटिल, क्योंकि मैं कंटेन कर रही हूँ उस बहुत सारी चीज को, एक कोशिश कर रही हूँ कि उसको जल्दी से बता दूं आपको विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। आई थिंक वो जगह देखें जहां पर फॉरेन जाके आपका सोल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें ना, पब्लिक सेक्टर के अंदर बड़ा मुश्किल, अच्छा, और एक ये जो मिसकंसेप्शन है कि पब्लिक सेक्टर टेक्नोलॉजी नहीं यूज करता, पब्लिक सेक्टर इस वक्त बहुत टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अपनी टीचर ट्रेनिंग काफी सारी वो टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं। बच्चों के साथ जो वो काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम कर रहे हैं, उसके अंदर टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा, क्वालिटी क्या है उसकी और उसके बाद वो सारी इंफॉर्मेशन का वो करते क्या है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट्स इन द पब्लिक सेक्टर। सो पब्लिक सेक्टर को शायद टारगेट आपके लिए करना राइट अवे इतना आसान नहीं है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव टेक्नोलॉजी, उनके प्रोक्योरमेंट के इश्यूज होते हैं। वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ बीस्ट है जिसको आप एड्रेस नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर में आपके पास काफी बड़ी मार्केट है जिसके अंदर आप मीडियम इनकम स्कूल्स, टीचर ट्रेनिंग है जिसके अंदर आप यू कैन मेक सम स्पेस फॉर योर सेल्फ। ये टेस्ट प्रेप की मार्केट है, आई थिंक ट्यूशन की मार्केट है जिसके अंदर आप वो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो जगह जहाँ के अंदर जिनके अंदर आपको बहुत ज्यादा प्री कंडीशंस पहले से इस्टेब्लिश करने की जरूरत ना हो, बस जाकर आप अपने कस्टमर के साथ एक लिंक बनाएं, सर्विस ऑफर करें कम से कम कॉम्प्लिकेटेड वे में, और यू जस्ट एड्रेस दैट। Absolutely. अच्छा अमार, my next question is basically to you. So अच्छा, काफी हमारे एक साइकिल था उसमें, we graduated like 6 tech startups. उन startups के founders से हम उनको बात कर रहे थे, so few of them they are selling their services not in Pakistan, abroad, and few of them are still here but they are actually struggling very much in terms के वो कहते हैं कि बेसिकली हमारे वहीं पे मार्केट्स हमारे लिए ओपन हुई जहां हमारे जानने वाले थे एक्सेट्रा। जो मैस चेंज हम लाना चाहते थे एजुकेशन में एज अ होल इन द कंट्री वो नहीं आ सका। जो हमारी डिस्ट्रक्शन थी वो एज टू बी ऑनेस्ट एस्टैब्लिश नहीं हुई। वी आर डूइंग फाइन, वी आर डूइंग सस्टेनेबल बिजनेस बिकॉज वी हैड कनेक्शंस विद फ्यू स्कूल्स इन एक्सेट्रा। सो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, माय क्वेश्चन इज बेसिकली व्हाट इज योर टेक on the statement के edtech startups या education and technology in Pakistan, इसका सीन है पाकिस्तान में या कोई सीन नहीं है? देखिए सीन है वो बनता 2 साल 3 साल 4 साल में नहीं है, बहुत ज्यादा चीजों को टाइम लगता होता है बिफोर दे कैन एक्चुअली टेक ऑफ। मतलब हम और किन चीजों की एग्जांपल है, मतलब टेक्नोलॉजी जो है, खैर मर्फीज लॉ है कि टेक्नोलॉजी हर साल डबल होती है, हर साल डबल होती है, ऐसे ही है। तो आई थिंक हमने वही वाली चीज, फॉर एग्जांपल माइक्रोचिप्स आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर उसमें एक टाइम पे 1 मिलियन ट्रांजिस्टर थे तो अगले साल वो 2 मिलियन हुआ है, फिर अगले साल 4 मिलियन हुआ है, अब जाकर 4 बिलियन की बात हो रही है। तो हर साल मर्फीज लॉ के अकॉर्डिंगली हम लोग डबल होते जाते हैं। आई थिंक एडटेक ईयर 1 में अगर
इट्स लाइक x, तो अगले साल वो 2x होगा, फिर वो 4x होगा। आई थिंक 10-15 साल चाहिए होते हैं कि आप जो है उसको जो है 50x 100x के ऊपर देखो, और तब आपको फील है कि हाँ यार इम्पैक्ट आ रहा है। तो आई थिंक जो भी आप फेलो एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी गुड कि वो इस टाइम पे वो वाली मार्केट्स ढूंढ रहे हैं जहाँ पर उनके जानने वाले हैं, जहाँ पर पैसे लाए करते हैं, और आस्ता आस्ता वो काम करेंगे। बाकी सारे एग्जांपल्स छोड़ते हैं, ज़मीन.com की फॉर एग्जांपल बात करते हैं। ज़मीन आज एक यूनिकॉर्न है पाकिस्तान के अंदर, उसका एक अच्छा खासा सीन है। लेकिन फॉर एग्जांपल जब हम लोगों ने 2003 में स्टार्ट किया था, तब तो इतना अच्छा सीन नहीं था। 2003 में व्हेन इमरान स्टार्टेड ज़मीन.com विद हिज ब्रदर, तो साथ में वो एक जिम का सेटअप भी उनका चल रहा है, और क्या नाम है, एक दो तीन, मतलब at one single time they were in 8 to 10 multiple businesses, जैसा वो अपने बारे में बताते होते हैं, ठीक है। इट वाज इन 2010 2011 when they realized कि यार ज़मीन का स्कोप तो अच्छा है, क्योंकि यूजर्स आस्ते आस्ते बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉपर्टी का सीन अच्छा होता जा रहा है। और पहले प्रॉपर्टी भी जो है वो सारी यही होती है कि एजेंट के पास जाने, एजेंट से जाकर बात करनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऑनलाइन इसको कैसे लेकर जाए। इट टुक देम लाइक ऑलमोस्ट 7-8 years टू अंडरस्टैंड कि ज़मीन.com का बिजनेस क्या हो सकता है, वो इम्पैक्ट कैसे ला सकता है। और 2011 में स्टार्ट करने के बाद राइट नाउ दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन मीना रीजन एंड पाकिस्तान। इसी तरह हम बायजूस इन इंडिया की बात करते हैं, उन्होंने जब स्टार्ट किया था 2007-2008 में उन्होंने स्टार्ट किया था, अभी 2020 से तकरीबन 10-12 साल लगे हैं जस्ट टू रीच 3 to 4 मिलियन स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि इतना बड़ा नंबर नहीं है इंडिया के हिसाब से, जहाँ पर ऑलमोस्ट 350 मिलियन स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो सीन डेफिनेटली है, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि यू नीड टू बी वेरी परसिस्टेंट, इतना परसिस्टेंट कि आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम लम्स। सोचा कहा जाता है कि बच्चे जब लम्स से ग्रेजुएट करते हैं उनकी 1,00,000-1.5 लाख की सैलरी होती है, ठीक है। मेरे ग्रेजुएशन के बाद ये सीन था कि आई हैड टू लिव 2-3 मंथ्स गर्मियों में, जून में ग्रेजुएशन हुई थी, रमजान का टाइम था, एंड आई कुड नॉट अफोर्ड एन एसी इन माय अपार्टमेंट, और घर से पैसे लेने वाली थी नहीं सीन, खुदारी थी बहुत ज्यादा। तो वहां से हमने स्टार्ट किया था। उस टाइम पे अगर हम कहते हैं यार सीन नहीं है, मिस कराओ, आराम से देखेंगे, आई थिंक नियर पीरियड इस टाइम पे ना होता। तो इस चीज को करना पड़ता है, आस्ता आस्ता करना पड़ता है। अभी भी वी आर नॉट देयर येट, आई थिंक अभी भी हमें कोई 10-12 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में, बट करते रहेंगे, सीन बनाएंगे, इंशाल्लाह मिलके बनाएंगे। Absolutely. Achha, so all the startups who are actually listening, so what he's trying to say, if the struggle is real, you cannot run from it. Secondly, the example he gave was basically there is a mindset problem. You have to tame people's mindset in order to adopt an education. But once you do it, there is going to be a market. And what he was talking about, all of us together, inshallah, we are going to create that mindset that when people would be comfortable taking online classes and giving online quizzes, when the weightage of online quizzes would be equal to traditional quizzes that student would give in the class, inshallah, Pakistan would reach that time in 10 to 15 years as a whole. Ma'am Shimi, we have one last question for you as a whole. Ma'am, काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन में पाकिस्तान में काम होता है, ऐसे लोग एफर्ट्स करते हैं, but there is a part of our education system that has not been touched yet. I solemnly feel the statistics can be wrong, I might be wrong, anything. And that is basically the concept of special education. If a person has any impairity in Pakistan, so unfortunately हमारा mindset ये है कि they cannot traditional education, इनको आप किसी और religious education में डाल दें, इनको ये they cannot do it because there are no mechanisms to teach such people. Do you see that in 5 to 10 years this mindset would change and people would start including the challenged and impaired people within the workforce? You're talking about a smaller percentage now. हमारी तो जो मैसिव पॉपुलेशन है उसी को वो एजुकेशन नहीं मिल रही जो कि मिलनी चाहिए थी। तो स्पेशल नीड्स की हम क्या ही बात करें, हमारे पास टीचिंग सर्टिफिकेशन कोई नहीं है, टीचर्स असेस नहीं कर पाएंगे, ज़्यादातर टीचर्स को नहीं पता चलेगा अगर उनकी क्लास में कोई स्पेशल नीड्स का बच्चा बैठा हुआ है। स्पेशल नीड्स के बहुत सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं टाइम पे कर पाते, वो लेबल हो जाते हैं, शुरू में ही हो जाते हैं, पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं। We have to do so much and we have to do it, of course, and it will be done. जहाँ पे नियत सही हो, इरादा सही हो, वहाँ पे क्या काम नहीं हो सकता। इंक्लूसिव एजुकेशन मुश्किल लगती है मुझे, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए भी एक माइंडसेट होना चाहिए, सिर्फ टीचर्स नहीं, जो फेलो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी उस बच्चे को देखभाल के चलना पड़ता है कि कोई उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, उसको उसकी नीड्स पूरी दी जा रही हो। ज़्यादातर स्कूलों में इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है, और अगर किसी का स्पेशल नीड्स का बच्चा है तो यहाँ पे आप मुझे वही आप वाली बात कि कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसको एक प्रॉपर तरीके से कुछ प्रोवाइड कर रही हैं। एंड कीप इन माइंड द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर गोइंग टू ओपन अप मोस्टली आर देयर फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स एज वेल. How are they going to survive? They're not getting any funding from the government.
So obviously they will have to charge somewhat. तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो फिर किसी ना किसी तरह को बेटर कुछ तरीके से कर ही लेते हैं. यहाँ पे मैंने देखा है फैमिलीज हैं जिनके प्रॉब्लम्स हैं, लोगों ने फिर हायर कर लिए हैं स्पेशल नीड्स के इंस्ट्रक्टर्स, उनके घर आके उनके बच्चों को केटर कर लेते हैं. But yes, we don't have enough means. Okay. Regular normal बच्चों के लिए नहीं है तो special needs के लिए तो I would like to ask Aisha what she thinks. नहीं, शर्मीन, आई एक्चुअली वांटेड टू जस्ट पिच इन, क्योंकि मेरे ख्याल में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मेरे ख्याल में अभी हम बहुत पीछे हैं ये इंश्योर करने में कि हमारे जो जिन बच्चों की स्पेशल नीड्स हैं उनको हम मेन स्ट्रीम कर सकें. आई थिंक वो जरा थोड़ी लॉन्गर टर्म बहुत ज़रूरत है वो सोचने की, लेकिन लॉन्गर टर्म बात है वो. जो आई वांट टू एक्चुअली, बिकॉज दिस आल्सो टाइज विद द अर्लियर कॉन्वर्सेशन अबाउट द niche market available to people who may be interested in bringing in a solution edtech का. और मेरे ख्याल में ये एक पिछले 2-3 सालों में 2-3 ऐसे एडटेक्स हैं जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन के ऊपर काम करने की कोशिश की है. मुझे लगता है कि कराची में एक बेस्ड है वंडरफ्री. हाँ, आई थिंक वो काम कर रहे हैं. एक दो और हैं जिनकी मैंने पिचेस सुनी थी, आई डोंट नो व्हाट बिकेम ऑफ देम. लेकिन ये है, और वही बात, लेकिन जब आप टेक की और आप सस्टेनेबल बिजनेस की बात करेंगे तो हाँ, एक बहुत छोटी ये मार्केट होगी. हालांकि नीड्स बहुत सारे बच्चों की हैं और जिनकी पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं है उनकी भी हैं. अनफॉर्चुनेटली शायद अभी शॉर्टर टर्म में आप उनको एड्रेस ना कर सके, लेकिन शॉर्टर टर्म में ये मार्केट एग्जिस्ट करती है. वेयर आई नो पेरेंट्स जिनके पास बहुत पैसे हैं और दे कैन बाय एनीथिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, बट दे आर अनएबल टू फाइंड एन इंस्टीट्यूशन जहाँ पर वो अपने बच्चों को भेज सके कोई मुनासिब तालीम के लिए. सो दे हायर प्राइवेट इंस्ट्रक्टर्स. अगर कोई वाकई इतना अच्छा सोल्यूशन है जो उनकी नीड को केटर कर सकता है, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड ओपनिंग फॉर समबडी हु इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ डिफरेंस. ओके. अच्छा, अब एक दो क्वेश्चंस है वो मैं सारे पैनल से पूछूंगा बारी बारी, ठीक है? तो स्टार्टिंग में डॉक्टर आयशा, यू बेसिकली, एंड दिस टाइम आई विल बी नीडिंग यस और नो क्वेश्चन. वो बेसिकली ये 10 years along the line, do you with us trying to making an effort in EdTech and in basically tele-education and so on and so forth, in 10 years down the line, in the next decade, and with the time, with the passage of time, जिस तरह time गुजरा है, decade बहुत मतलब बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, मतलब अब वो decade 10 साल वाली ना, दुनिया 10 साल में कहीं से कहीं चली जाएगी. However, would we be able to see the drastic education goal achievement that we should? No, it's just a yes or no question, right? So I very honestly for Pakistan, no. Okay, Amar, what do you think with all the efforts of EdTech and it now that Dr. Aisha has given answer, your answer should not be biased at all. What do you think? EdTech में जो मेहनत हो रही है as a whole, और जो हम tele education पे काम कर रहे हैं, education might also be declared an emergency in Pakistan. 10 years down the line, would we be obviously we're going to prove there is no running from that, but would we up to the mark of education at par with at least some decent countries in the world? देखें, ऑब्जेक्टिवली इस चीज को देखते हैं ना, यूएनडीपी के हिसाब से एजुकेशन इंडेक्स के अंदर वी आर राइट नाउ at 171 out of 189 countries. It's only a yes or no. Amar, sorry, caveats नहीं देने बीच में. अच्छा, तो it's actually a no question. It's a no brainer. yeah. 10 years के अंदर अमार, बात 10 years की नहीं है, 2 साल में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है. नियत और इरादा, और फिर करने दो ना, जो लोग काम करना चाहते हैं, let them work. ज्यादा आ जाती है. That Sarmad has already, वो क्वेश्चन के अंदर पहले से सरमद ने वो डाल दिया था कि इम्प्रूवमेंट नो डाउट होगी and there will be good work by good people, but वो जो बात कर रहा है कि क्या हम वहां पहुंच सकते हैं जहां हमें स्टूडेंट 50 साल पहले होना चाहिए था, सवाल ये भाई. जिस कंट्री में आपका अभी तक मीडियम ऑफ एजुकेशन ही नहीं डिसाइड हुआ, जहाँ पे बेचारी किसी गरीब गवर्नमेंट को 5 साल ही नहीं पूरे करने दिए, आप क्या बात कर रहे हैं? हम लोग अल्लाह करें इंशाल्लाह सरवाइव करते रहे इज्जत के साथ, अपने मासूम बच्चों के खातिर हम कुछ कर सकें, उन्हें कुछ दे सकें. आई एम एम्बैरेस्ड. हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमने क्या किया है? हमारे माँ बाप ने शायद हमारे लिए बेहतर कर दिया था. वी हैवंट प्लेड आवर गेम वेल. अच्छा, मैम जो बातें कर रही है वो मैम की पर्सनल थॉट्स है, इदारे का इससे कोई लेना नहीं है. I would want to say yes, because again my yes might be. This is the answer I was looking for. ये चीज. So my yes might be far from the reality, but I think it is the job of entrepreneurs to create the reality distortion field and operate in it. So yeah.
एब्सोल्युटली, और मेरा भी यही है मैसेज बेसिकली कि इंडिकेटर्स और हर चीज यही शो करती है कि दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. नाउ दिस लीव्स the ball to the entrepreneurs and the people who are making the effort, that they should turn this impossible into the day that was always promised. Asha, Dr. Aisha, one last thing, and that is, would you like to give any message to all the potential tech startups and all the potential entrepreneurs that are watching this session? Anything that can be related to education, that cannot be related to education, anything you just want to say to them via our platform? हाँ सर, मेरे मेरे ख्याल में कि जब आप एजुकेशन की बात करते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी उसमें हो या ना हो, लेकिन बहरहाल ये एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, और ये उन चीज़ों में से एक चीज़ है जिसकी हम बात करते हैं ना कि एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं किसी चीज़ के, किसी सर्विस के साथ एसोसिएटेड, कि एक तो ये कि वो उसका डायरेक्ट एक कंज्यूमर है, लेकिन उसकी वजह से जो आपकी वैसे सोसाइटी के ऊपर क्या स्पिल ओवर इफेक्ट्स या सेकेंडरी इफेक्ट्स हो रहे हैं, ये उस किस्म की चीज़ है, हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई. तो किसी भी सोशल सर्विस के अंदर जब आप एंटर होते हैं ना, तो ये आपको लगता है कि लोगों को ये तो नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसके लिए सर्विस के लिए एंटर हुआ हूँ, मैं तो इसके लिए इसके अंदर बिजनेस के लिए एंटर हुआ या हुई हूँ. वो अपनी जगह पे है, लेकिन बहरहाल जहाँ पर बच्चों की एजुकेशन की बात आती है, उसके अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है, तो आपको उस एंगल से भी जरूर सोचना चाहिए. आई थिंक यू शुड बी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स जिनको आते हुए देखा है, मैंने देखा है कि वो ये सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज दे हैव बीन टू स्कूल, दे हैव गॉन टू स्कूल और टू यूनिवर्सिटी, दे नो व्हाट एजुकेशन इज और दे नो व्हाट द प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन आर. मेरे ख्याल में आपको अच्छे एंटरप्रेन्योर किसी भी फील्ड में नहीं बन सकते हैं अगर आपको उस फील्ड के बारे में नहीं पता, अगर आपको जिन लोगों की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स का ही नहीं पता, कॉन्टेक्स्ट का ही नहीं पता. सो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा ये कि मेहनत करने की आदत डालें. मेरे ख्याल में बहुत सारे एडटेक्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को, सॉरी फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड बट आई ऑल्सो वांट टू बी डायरेक्ट, अपने आप को एंटाइटल्ड समझते हैं. वो समझते हैं कि हम एक शायद नोबल काम करने जा रहे हैं और देखें हमारे पास तो आपके मसले का सोल्यूशन है, आप हमसे क्यों नहीं ले रहे, आप हमें प्रमोट क्यों नहीं कर रहे. आई थिंक दैट इज नॉट द थिंकिंग जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी. आई थिंक यू अर्न व्हाट इट इज दैट यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट. और आप ये सोचेंगे इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, इट्स ऑल्सो अबाउट योर लार्जर सोसाइटी, आपका कस्टमर, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो बहुत सारी बातें, लेकिन आई थिंक ये मेन चीजें हैं जो आपको ख्याल रखना चाहिए. Ma'am Sharmeen, same question to you. Basically, with our platform, would you like to give any message to all the entrepreneurs there in and out of education, whatever they're doing? Thank you so Please. much. 2 things for the edtech startups. Kindly create a device. Work with some government sector which can give you a device which you can give to the masses, public sector, जो सस्ती हो, जिसके ऊपर वो जैसे सबक ने किया है, उन्होंने एक डिवाइस क्रिएट करके TCF के स्कूल के बच्चों को पकड़ाई है. 550 से ज्यादा बच्चे TCF के उस डिवाइस को यूज करके सबक का करिकुलम फ्री पढ़ रहे हैं. सो जो भी करना चाहिए, यू नीड टू हैव दैट डिवाइस. सबसे पहली बात, उसके बगैर तो आप टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेशन ले नहीं सकते. एंड देन अगर आपने एजुकेशन देनी है, फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन को देख लीजिए जरा सा. आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का पता होना चाहिए. आपको जो वेरियस लर्निंग कर्व्स हैं, जो वेरियस लर्निंग स्ट्रैटेजीज हैं, वो सारी आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उनको देखते हुए अपना करिकुलम बनाएं. उसके बगैर गुजारा नहीं होगा. एंड लाइक आयशा सेड, यस, we all need to stay positive. We need to work very, very hard, and we can do whatever we want. Just stay positive and do it. Just do it. Any message or any advice that you want to give to the startups? आपकी बात कट गई थी. For me? मैं कह रहा था हमारा आपकी तरफ से कोई message to all the entrepreneurs who might be working in education, might not be working in tech. I think I'm one of the panelists जो कि शायद दूसरे panelists से इस time पे advice ले रहा है. I don't know मैं क्या advice दूँ. I think I loved Sharmeen's idea of having the devices and disseminate it, because abhi tak we haven't worked on that. And I think one thing that we fear a lot is going into the logistics of physical things, and devices is maybe one of that thing. It is costly, it involves a lot of logistics and procurement, and we are just fond of doing the things that are related to the website and digital dissemination. Devices वगैरह वाली चीज़ काफी मुश्किल लगती होती है, लेकिन I think that is very important aspect to look at. My advice to the startups is कि again ये education से हट के है, चाहे कि जिस किस्म का आपका startup है, please
कोशिश करें डे 1 पर अगर आपने काम स्टार्ट किया है तो डे 60 के ऊपर आप रेवेन्यू बनाना शुरू करें, चाहे जिस मर्जी किस्म के बिजनेस के अंदर है। इफ यू आर नॉट मेकिंग रेवेन्यू, That is very important what he just said. Mark, can you do? So market basic concept of sustainability बहुत important है. If you are not funded by any certain cause, there must be a way for you to generate funds. मतलब जिस तरह मैम ने कहा कि if you are entitled in doing a noble cause, that does not mean you do not have to work. You have to meet certain standards and you have to make money. और रेवेन्यू का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि so, आप जो अपने आप को सस्टेन करने के लिए करें। रेवेन्यू का मतलब ये भी है कि आपके पर्सनल मोटिवेशन के लिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब फॉर एग्जांपल आपने क्या, मैं डे 60 के ऊपर जो मैं रेवेन्यू की बात करूं, वो रेवेन्यू शायद इतना होगा, शायद वो 10 रुपए होगा, ठीक है, लेकिन वो 10 रुपए भी आपको अर्न कर दें ताकि आपको मार्केट की वैलिडेशन पता चले कि आपके प्रोडक्ट की कोई डिमांड मार्केट के अंदर है कि नहीं है। तो इसलिए यू नीड टू मेक मनी इंस्टेड ऑफ आप 6-7 महीने अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करें। तो दिस इज द ओनली एडवाइस जो मुझे समझ नजर आता है कि फाउंडर्स नहीं करे, एंड आई थिंक दिस इज अ की थिंग। रेवेन्यू बनाना शुरू करो, बेशक चाहे वो 10 रुपए है, ताकि तुम्हें वैलिडेशन मिल जाए। अच्छा, so all the people who watch us, thank you very much. आप लोगों को जो comments आए हैं, we would reply them. We do not had enough time कि हम उनको सेशन में पूछ सकते हैं। जिनके पूछे हैं, thank you very much. जिनके नहीं पूछे, आप इंशाल्लाह हम पेज पे रिप्लाई कर देंगे। और अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज लिखिएगा। We'll ask our honorable audience. I really personally thank Dr. Aisha for giving us the time. Thank you so much, ma'am, for coming. Ma'am Shameen for giving us the time. Thank you so much, ma'am, for giving us the time. And Amar, thank you so much for giving us time on your birthday. Once again, happy birthday from all of us and from Team Plan 9. Thank you. Inshallah, we will see you soon. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.